या उधर ही लोग क्या का लाइट बंद चलो चलो क्या मंत्रा Chatty chatty? कह दूँ? पॉडकास्टर्स के लिए ये एक बहुत बढ़िया मुकाम है जहाँ पर HT की तरफ से इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिया गया है फॉर ऑल द पॉडकास्टर्स एंड ये एक बहुत ही बढ़िया मीडियम है, उभरता मीडियम है, ऑडियो डिजिटल की दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग अपनी बातें कह पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। और आज हर रोज़ आपको नए से नए पॉडकास्टर्स सुनने को मिल रहे हैं, सेलिब्रिटी पॉडकास्टर्स से लेके कंटेंट क्रिएटर पॉडकास्टर्स जिन्होंने पूरे कोविड के टाइम लोगों का बड़ा साथ दिया। लोगों ने पूरा वक्त बैठ के पॉडकास्ट सुने हैं। और पॉडकास्ट एक ऐसी चीज़ है, आप सुनते रहें, गाड़ी चला रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, यू डोंट रियली नीड टू look at a screen. So I think it's a great medium and I'm glad that HT Smartcast is appreciating people from this medium. Cool. Thank you. मैम लोग क्या मैम क्या मैम होल्ड है आगे जाए ओ आप लाइट्स कम है रेडी रोलिंग यस हेलो मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। इट्स अ पॉडमास्टर्स अवार्ड, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दिस? I'm here to represent my daughter and I'm very excited for her, I'm very proud of her and I'm thrilled to be here to collect the award. But how do you see the change? People are getting more into podcasting. People have started to do a podcast. Even the celebrities are doing the podcast. How do you see this change? I think it's wonderful. It's a great way of reaching out to people. It's you can carry it wherever you go. You can listen to it on a train, on a bus, while you're in a waiting room, and I think it's fantastic. It's just another wonderful medium of getting it. Okay, but what about Navya? Is she trying to get into Bollywood or is she like? I think you're all very well acquainted with the work Navya does, and she has her hands full, and I don't think Bollywood is the way to go. Thank you so much. Thank you. Hi, how are you? Good, thanks. Is this Thank you. Done? वहाँ का हो गया। आए चले अंदर। अरे ये इनका नहीं हुआ उधर हुआ। Oh, I'm हाँ। so sorry. Thank you so much for joining us, sir. Not at all. I'm good. Yeah. How excited are you for this? यार आई थिंक पॉडकास्टिंग की अपनी अवार्ड्स हो रही हैं, दैट्स अ लवली थिंग बिकॉज रियली आई थिंक एक इकोसिस्टम तब कंप्लीट होता है जब किसी चीज़ की एक अवार्ड इस्टेब्लिश हो जाती है। और मेरे काफ़ी सारे दोस्त और मैं खुद भी चूँकि पॉडकास्टिंग करता हूँ तो इसलिए मुझे लगता है दैट you now find when there's a Ranveer Alabadia, Zakir Khan, whether it's a Navya or there's Raj Shamani, there's so many people who are doing podcasts or whatever, so I think this has become a new medium for the youth. तो अच्छा लगेगा देखने के लिए कि who wins, who are the people who are making it. Well, also sir, ये भी जानना चाहिए, many celebrities they don't want to reveal their secrets of life in front of media, but they are revealing their secret in front of other celebrities, like on podcasts. So what do you have to say when media opens their secrets? So they are like, why you are entering into our life, and now this is podcast. They are opening themselves. What do you have to say on that?
देखिए, सी यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हेन नेहा धूपिया स्टार्टेड हर पॉडकास्ट, सबसे पहली बात जब पॉडकास्ट में वीडियो नहीं था, पीपल वर इवन मोर ऑनेस्ट, बिकॉज आपको लगता है ना कि आप एक दोस्त से बात कर रहे हैं, राइट? व्हेन मीडिया कम्स वी ऑल पुट ऑन अ लेंस फर्स्ट ऑफ सेइंग दैट ओ यू आर गोइंग टू कोट अस. इन अ पॉडकास्ट इट बिकम्स वेरी कॉन्वर्सेशनल, और अगर दो दोस्त बात कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली बातें कुछ ऐसे खुल के निकल के आती हैं. एंड people, even when they are podcasting nowadays, I must tell you that many of us as podcasters, once the episode is done, send the entire episode to the celebrity to say, do you like? मैंने इम्तियाज़ के साथ करी, जाकिर के साथ करी, बहुत लोगों के साथ करी. मैं पहले एपिसोड, और हम लोग की प्रैक्टिस होती है, हम पहले उनको भेजते हैं कि आर यू ओके विद दिस, और उनको पता है कि कोई चीज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं निकाली जाएगी. अनफॉर्चुनेटली podcasters are not in the business of making daily news. We are in the business of trying to build an audience over time. तो उसमें ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है. हाँ बिल्कुल. लेकिन क्या होता है कि पॉडकास्ट जब आप 3-4 घंटे रिकॉर्ड करते हैं ना, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट आउट ऑफ, सबको प्रॉब्लम कोट से नहीं है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट से है. उसी दिन जो था वो मनोज वाजपेयी कह रहे थे कि उन्होंने बात करी कि अपनी किसी फिल्म के बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई सो एंड सो की वजह से मुझे ऐसा लगा. अब क्या हुआ कि उसमें हो गया कि इट सो एंड सो वाज अ फेलियर. ना उन्होंने वर्ड फेलियर नहीं यूज़ किया था. तो जब लोग शब्द डालने लगते हैं देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. इफ़ यू हैव टू कोट देन कोट एग्जैक्टली एज इट इज़, इट्स स्टिल फाइन. बट आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ, देखिए सेंसेशनलिज्म की दुनिया में हम सब जीते हैं, तो वो आज 10 सेकंड की रील में आप लोगों का कैसे इंटरेस्ट बना सकते हैं, that becomes the core of it. So I think everybody is trying to do their job to the best possible degree. Thank you so much. Not at all. Thank you. Look. Camera. Okay, ma'am. Press it in. Yeah. Mics? No worries. हाँ जी. हाँ, पहले तो मेरा नाम नैना भान है और मैं एक पॉडकास्ट पे काम करती हूँ जिसका नाम है मोमेंट ऑफ साइलेंस. मैं और मेरी को-होस्ट साक्षी शिवदसानी, जो एक बहुत ही फ़नी महिला है, एंड हम काफ़ी नए हैं पॉडकास्टिंग में, तो इट्स रियली लवली दैट वी गेट टू बी अ पार्ट ऑफ एन इवेंट लाइक दिस वेयर सो मैनी पॉडकास्टर्स जो इतने सालों से काम करते आ रहे हैं और इतने विशेष सब्जेक्ट्स पे बात करते हैं, उनके साथ वी कैन इंटरैक्ट. सो दैट्स रियली नाइस. हाँ जी. मुझे तो बड़ा मज़ा आता है. मैंने पिछले साल 25,000 मिनट पॉडकास्ट सुना. मैं गाने नहीं सुनती, मैं पॉडकास्ट सुनती हूँ. मैं काम कर रही होती हूँ घर पे, मैं जॉगिंग कर रही होती हूँ, नहा रही होती हूँ, मेरे दिमाग में हमेशा पॉडकास्ट चलता रहता है. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग दैट यू कैन रियली फिट इन योर लाइफ वेर एवर यू आर, वेदर यू आर कम्यूटिंग, कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट इट्स गॉट द स्पेस दैट इट्स गेटिंग. थैंक यू. दैट्स इट ना. थैंक यू. बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया. थैंक यू सो मच. Tonight it's a big moment for all the podcasters because I think finally now the whole country has started accepting podcasts as a new medium and everybody is enjoying. There are so many genres. I'm so happy. I'm looking forward to actually discover new podcasts as well tonight. And it's a pretty great moment because we're just getting started and I think there's a long way to go. Everything was great there. I think the whole idea was to go there, understand, what the whole culture is, what different parts of the world is celebrating in the movie world, and spread awareness around the world. And I really loved that finally our Indian movie, they won the award there. So that was a pretty exciting moment. Sure, you were saying something. Yeah. राज भाई, काफ़ी लोग पॉडकास्ट में आ रहे हैं. हाँ जी. आप करते थे, फिर रणवीर थे और बहुत सारे लोग थे. काफ़ी लोग पॉडकास्ट में आप शुरू कर सकते. काफ़ी
22-23 साल के लौंडे भी आजकल शुरू कर चुके हैं पॉडकास्ट। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? चेंज कितना आ रहा है और कंपटीशन कितना बढ़ गया आप लोगों के लिए? आई डोंट थिंक कंपटीशन एट ऑल बढ़ा है. आई थिंक अभी 1000 5000 और पॉडकास्ट आने चाहिए, उसके बाद ही चेंज एक्चुअली बड़ा बनेगा. इतनी बड़ी कंट्री है, 150 करोड़ लोग हैं इधर, और उनमें सिर्फ क्या 15 20 50 पॉडकास्ट थोड़ी चल सकते हैं. सो आई थिंक अभी तो बहुत कम है और बहुत बड़ा मार्केट है. इनफैक्ट बहुत बड़ा मार्केट अनटैप्ड है, जिनके पास आज तक फ़ोन नहीं पहुंच पाया है. तो जिस दिन उनके पास फ़ोन पहुंचेगा, इंटरनेट पहुंचेगा, फिर उसके बाद उनके पास सही बातें पहुंचेगी उनके इंटरेस्ट की. सो आई थिंक देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो. मुझे लगता है 20-22 साल के, आई थिंक 17 18 19 सबको स्टार्ट कर देना चाहिए. लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं पॉडकास्ट की बात करूँ आपके, तो पर्सनली आप किसे पॉडकास्ट पर बुलाना है जो अब तक का ड्रीम आपको फुलफिल है आपको? वाह, ऐसे तो मैं पूरी लिस्ट दे सकता हूँ आपको. यार आई रियली फील वन डे, मतलब मैं शाहरुख खान सर को बुलाना चाहूँगा एक दिन. एंड द रीज़न इज़ वेरी पर्सनल, बिकॉज मुझे लगता है कि जितने और मेरी लिस्ट में गेस्ट हैं सारे, उनमें से उन्होंने ना सारे टिक कर दिए हैं. बिकॉज इफ़ यू लुक एट माई होल पॉडकास्ट, हमारा पॉडकास्ट स्टैंड करता है हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप कैसे ग्रो कर सकते हैं. आई थिंक उन्होंने तीनों मास्टर कर दिए. वो जब देखो, जब उस बॉडी में आ जाते हैं जब उन्हें चाहिए होता है, उनकी रिलेशनशिप्स और फैमिली बहुत अच्छी है, उनके पास वेल्थ बहुत अच्छा है, उन्होंने दुनिया लोगों में प्यार बहुत कमाया है. तो उन्होंने आई थिंक सारे गेम जीत लिए हैं. इसलिए मुझे लगता है कि उनसे सीखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर द होल ऑडियंस एंड फॉर अस. कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सो हाउ मच यू वर्क ऑन योर पॉडकास्ट? बिकॉज सेलिब्रिटीज भी ओपन कर चुके हैं, नॉर्मल कॉमन पीपल्स, और आप लोगों ने तो पहले स्टार्ट कर ही दिया था. बट कंपटीशन की बात करें तो फिर मुझे नहीं लगता कंपटीशन बढ़ा है. आई जेन्युइनली डोंट थिंक सो. अगर आप देखो कि कंपटीशन बढ़ा है, आप ऐसे बोल रहे हो, लोग भी तो कितने सारे हैं जो कभी पॉडकास्ट सुनते नहीं थे, सुनने लग गए. तो मुझे लगता है कि अभी मार्केट बहुत बड़ा बाकी है. सेलिब्रिटीज़ क्या, मुझे लगता है हर नॉर्मल इंसान को पॉडकास्ट बनाना चाहिए अगर उनके पास कुछ एक मैसेज है जिससे वो दुनिया चेंज करना चाहते हैं. क्योंकि इतनी सारे टॉपिक्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अच्छी बातें की जा सकती है. तो बहुत स्कोप बाकी है. मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कंपटीशन है. रही बात हमारी, तो हमारा प्रोसेस बहुत सिंपल है. हम लोग हर पॉडकास्ट से पहले और बनाने के बाद एडिटिंग के टाइम पे भी सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखते हैं, क्या इस पॉडकास्ट के थ्रू हम किसी को कुछ सिखा सकते हैं. अगर हम नहीं सिखा सकते तो हम वो पॉडकास्ट ही नहीं बनाते और यहाँ तो डिलीट कर देते हैं. अच्छा, वेंकटेश अय्यर के पॉडकास्ट के बाद आपके साथ जो हुआ काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, मिलियंस में व्यूज़ आए, लेकिन उसके बाद एक डिमांड और आ रही है कि माई भाई को लाइए पॉडकास्ट में. भाई आपकी अगर कनेक्शन हो तो बुला लो. लेकिन आपके कनेक्शन बहुत ज़्यादा है भाई, काफ़ी लोग आपको जानते हैं, तो कभी ट्राई किया आपने माई भाई को लाने का? अभी तक ट्राई नहीं किया, बट मुझे लगता है कि हम उनके लिए अभी रेडी नहीं हो पाए. अब उस तरफ हम बढ़ रहे हैं. एक दिन ज़रूर लेके आएंगे, वो हमारी ड्रीम लिस्ट में है. एंड उनसे बहुत चीज़ें सीखनी है हमें. तो डेफिनेटली आप वेट कर सकते हैं कि एक दिन ज़रूर होगा वो पॉडकास्ट. थैंक यू भाई, थैंक यू. थैंक यू. Look camera. Right में right. Thank you. Right. one to this side, one to this side. थोड़ा सा बाय बाय. लेफ्ट शिफ्ट हुई है ना थोड़ा. सर इस तरफ आइए. Wait. थैंक यू. पीछे हेलो पीछे. भूमि सर. भूमि सर इधर. सर राइट. हम इधर. डावीकडे भूमि सर. लोक डावीकडे सर राइट साइड. लेफ्ट साइड लेफ्ट बाय उनके लेफ्ट सर दूंगा. जी. Okay, so hi, Jimmy. Firstly, we want to know, how much excited you are for Podmasters. You see, I think it's a great initiative by Hindustan Times and Fever for these Podmasters Awards. I think the podcasts and voiceover shows and audio series and everything is like catching up like big right now. And yeah, it's a great thing for all the voiceover artists and all the podcasters and everything. And I think in the years to come, it's going to be huge.
So it is already internationally, but I think over here it's give it another year. I think it's going to be huge. So I think it's a great thing. ऑल्सो हम ये भी जानना चाहेंगे पॉडकास्ट पर आने के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ की सीक्रेट्स भी बता रहे हैं. हाउ मच यू आर ओपन टू शेयर योर सीक्रेट्स? मैं जब आऊँगा तब बताऊँगा. अभी क्या, अभी तो मैं किसी पॉडकास्ट पे नहीं हूँ यार. हाँ, आर यू ओपन टू शेयर? whichever shows I've been to, I've tried to be as open as possible. That's fine. थैंक यू सो मच. That's it. Thanks. अरे लुक क्या सेंटर लुक क्या अरे एक मिनट थैंक यू सो मच. सॉरी. Ready? How much you are excited for podcasters tonight? I'm very excited because I started my career with Hindustan Times as a journalist, and all these years later I'm nominated for multiple awards, so it's like full circle for me to come back to HT. So talking about podcast, you know, which celebrity or Yeah. which actor you want to podcast? Zakir Khan, Zakir bhai, I think is one of the most beautiful, thoughtful, expressive, vulnerable man, and I'd love to hear him. He was on Be a Man Yaar, my show as well, and I think he should be speaking a lot more regularly than he does. Also, your video got viral. What do you have to say on that? I mean, very fortunate that clips of our show are going really viral. The intention is to get more people to have conversations that matter, and yeah, thankfully, like when you have stages like this and these things get celebrated, it helps the conversations go further as well. So really grateful to be here. Thank you so much. So one look this side, please. सही क्या कैमरा लो सही है So one camera look, please. वर्ल्ड कप में जा रहे इंडिया पाकिस्तान के थैंक यू जो लेना बाइक Yes. लेना. सब bites. Yes. Thank you so much for joining us, sir. कितने excited हैं? Podmasters Award है. Podcast की तो दुनिया है आजकल. Hey, very excited yaar. Of course, all of us work and we think that it'll be appreciated, acknowledged, people will notice. You don't create content just for yourself, क्योंकि अगर खुद के लिए हो तो फिर रिकॉर्ड ही क्यों करेगा, फिर पब्लिश ही क्यों करेंगे. So obviously this is exciting. I'm looking forward to it. अच्छा, कौन से podcasters की आप ना एकदम तहे दिल से बैठ के देखते हैं कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है? नहीं, मैं तो बहुत सारे देखता हूँ एक्चुअली, और आई वोंट पिक वन. अभी वो रौनक का एक नया है विच इज़ वेरी नाइस. इज़ गॉट सम ग्रेट गेस्ट. रणवीर के साथ मैंने खुद भी किया हुआ है, सो ही इज़ समवन हु आई रियली लाइक. बट येस, आई डू कंज्यूम अ लॉट ऑफ कंटेंट. I go even for geopolitics and also वर्ल्ड कप के लिए काफी एक्साइटेड है लोग, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है लोगों में. क्या लगता है इस बार इंडिया को झंडा लहरा कर आएगी? अच्छा तो करना चाहिए. आई मीन से T20 वर्ल्ड कप, दैट टू इन द वेस्ट इंडीज़, इतना आसान तो नहीं होगा, पर उम्मीद यही है कि अच्छा करे, क्योंकि इट इज़ पॉसिबल कि कुछ लोगों का ये शायद ही आखिरी हो. सो यू रियली वांट देम टू गो अहेड एंड विन द ट्रॉफी. रह गए थे हम 23 में. होपफुली that thing is settled this time. अच्छा, लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा का ये आखिरी हो सकता है क्योंकि he is over 37 now. See, never say never, but yes, next World Cup is in 2027, so he's not getting younger. The possibility है. Again, the man will decide when he wants to call it quits, but the team should rally around. If it is to be the last one, then he should walk away with a trophy in his hand, क्योंकि वो एक चीज़ 2007 में मिली थी, but then since then he has done a lot, but hasn't won a trophy yet. So 2007 की आपने बात की तो माही भाई, correct. माही भाई 2000 IPL 2025 खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है ओवर द इंटरनेट. Correct. चाहे बच्चे हो बूढ़े हो, सब यही सोच रहे हैं कि माही भाई खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे. तो आपको कितना पता है इस बारे में? MS का एक्चुअली बताऊँ मैं, साक्षी को भी नहीं पता होगा.
आई मीन जो वाइफ को ना पता हो तो किसी को क्या पता होगा, वेरी ऑनेस्टली. ही लुक्ड ऑल राइट. फ्रॉम अ वेरी फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इफ ही इज फिट ही इज हैप्पी टू प्ले. पर दिस ईयर देयर विल बी अ बिग ऑक्शन एज वेल. तो वो एक डायनामिक है, एंड विद MS यू नो कि ही विल पुट हिज टीम अहेड ऑफ हिमसेल्फ. सो वो एक डायनामिक ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ बिग ऑक्शन एज यू सेड. रिटेंशन 3 years. 3 years is way too far for him. He's 42, so वो मुश्किल है. इंडियन हेड कोच की बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ऐसा लोग बोल रहे हैं गौतम गंभीर बन सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं स्टीफन फ्लेमिंग बन सकते हैं. लोग BCCI ने MS धोनी को अप्रोच किया टू कन्विंस फ्लेमिंग, राइट? आप क्या कहेंगे? वेल जो भी बनेगा यार, इंडियन क्रिकेट आई थिंक हुएवर कम्स इन नाउ उसको ट्रांजिशन मैनेज करना पड़ेगा. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी थिंग. ट्रांजिशंस आर वेरी डिफिकल्ट. यू हैव टू नेविगेट वेरी केयरफुली, क्योंकि कुछ लोग जा रहे होते हैं, नए लोग आ रहे होते हैं. यू ऑल्सो फाइंड टर्बुलेंस, क्योंकि जब नई टीम के साथ आप खेल रहे हैं तो देर इज़ अ चांस कि इमीडिएट सक्सेस ना मिले, बट देन यू स्टिल हैव टू नेविगेट थ्रू इट. सो whoever becomes, I really hope he does a great job, because ये अगले 2-3 साल इंडियन क्रिकेट का नेक्स्ट 10 से 15 साल फ्यूचर जो है शेप करने वाले हैं. सो whoever is there, if it's Gautam, beat Gautam. सर एक आखिरी सवाल, विराट कोहली के वर्ल्ड कप सिलेक्शन को भी लेकर काफ़ी बात चल रही थी. कोहली जाएंगे या ड्रॉप होंगे, तो क्या लगता है जिस तरह से IPL में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, हैज़ बीन इनक्रेडिबल, राइट? क्या लगता है वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस उनकी अच्छी होगी? वर्ल्ड कप तो हमेशा अच्छा करता है कोहली, तो इसमें कोई डाउट नहीं है. मुझे तो लग रहा है शायद ओपन करते हुए नज़र आ जाएंगे. तो रोहित कोहली अगर साथ में ओपन कर रहे हैं, आई मीन दैट विल बी अ डिलाइट. और अच्छा ही करेंगे, आई एम प्रीटी श्योर. वर्ल्ड कप्स इज ऑलवेज देयर. दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू से फॉर सचिन पाजी, कि वर्ल्ड कप सारे उनके अच्छे होते थे. कोहली का भी सेम है, वर्ल्ड कप तो अच्छा ही होगा. अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि रोहित को 3 नंबर पर भी खिलाएंगे तो भी अच्छा होगा. क्या लगता है रोहित 3 नंबर पर अच्छा करेंगे? रोहित कप्तान है, उनको कोई खिला नहीं सकता. उन्होंने खुद डिसाइड करना है कि मैं कहाँ खेलूँगा. आई डोंट थिंक ही इज़ बैटिंग एट 3. ओपन करेंगे, और ओपन करेंगे, अच्छा करेंगे, इज़ व्हाट आई फील. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. या श्वेता जी इधर, श्वेता जी, श्वेता मैम इधर, श्वेता मैम इधर, कैमरा. अरे भाई ये हटना बीच में से. श्वेता मैम इधर नहीं मिला. सर ये साइड. रुको. राइट टू लेफ्ट सर, राइट टू लेफ्ट. सर यहाँ जाकिर भाई. इधर. सर राइट टू लेफ्ट. सर यहाँ. हमारे लिए उम्मीद बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. उम्मीद वो चीज़ है जिस पे हम हमारा हर काम उम्मीद के अराउंड होता है. हम उम्मीद से ही काम करते हैं, उम्मीद से ही बात करते हैं. तो उम्मीद हमारे लिए बहुत ही स्पेशल रहा है. तो बस आज की शाम भी वैसे ही स्पेशल है. आज पॉडकास्टिंग जब हमने शुरू किया था तब बहुत लोग कर नहीं रहे थे, ठीक है, और हमने इसे ऑडियो फॉर्मेट की तरह शुरू किया था. और आज अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई कि लोग रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी ये बड़ा दिन है कि ये हो रहा है. तो इसलिए हम उसको सपोर्ट करने के लिए आए. थैंक यू. जी कुछ नहीं साहब, ऊपर वाले का है, जिसकी चलती है उसकी चलती है. हमारे हाथ में क्या ही है, हम तो बना ही सकते हैं. बाकी लोगों की ख्वाहिशें जो है वो हम अपनी तरफ से पूरी करने की कोशिश करेंगे. अभी इस वक्त लोग हमको सुनना चाह रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उनको बेहतर से बेहतर चीज़ें दें, है ना, वरना किसके हाथ में क्या है. हमने क्या रिप्लेस किया उनको? हमारी कोई हैसियत या औकात नहीं है उनको रिप्लेस करने की. वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं हमसे. उनका शो किसी और प्लेटफॉर्म पे चला गया और उस खाली जगह को भरने का मौका हमको मिला है. हमारी हैसियत नहीं है. बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत प्रेम है और उनका बड़ा आशीर्वाद रहा है हम पे. तो हम तो क्या ही रिप्लेस करेंगे उनको. जाकिर भाई कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है. जी बहुत सारे पॉडकास्टर आ गए हैं. जब हाँ. हमने शुरू किया था उतने नहीं. हाँ. अब मार्केट में कितने पॉडकास्टर्स हैं ना, देखते देखते हमारी आंखें नहीं भरती. हाँ. पॉडकास्टर्स हैं. हाँ. तो आप
देखते हैं कंपटीशन को कि यार इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं, कंपटीशन की तौर पे नहीं देखते, भाइयों की तरह देखते हैं, बहनों की तरह देखते हैं उनको, हम दोस्तों की तरह देखते हैं। और अभी तो कम है पॉडकास्ट, अभी और आएंगे, देखिएगा आप इंशाल्लाह। चलिए, थैंक यू। तो बदल बैटरी को भी थैंक यू। Just come here. Why are you standing there? हाँ बोलिए। It's very interesting. देखिए, technology has reached to such a level. जब हमें पता लगा कि पॉडमास्टर्स के लिए भी अवार्ड दिया जा रहा है, I found it very very unique and I would congratulate HT for coming out with these awards. बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पॉडमास्टर्स जो होते हैं, जो पॉडकास्ट जिसे हम कहते हैं, they really work hard. The questions that are asked to a celebrity are very interesting. उनकी ज़िंदगी के बारे में, and the way they edit it and the way they present it to the world, I think it's a well-deserved award for all the podmasters, क्योंकि ये अचानक जो एक फिनोमेना हुआ है, people have woken up to this absolute platform, I would say, and I'm very impressed and very happy. You know, this is my personal take. I personally feel that this one-to-one between the gentleman who sits across and the way he speaks to you, वो उसे अपना बनाने की कोशिश करता है, वो अपने दिल की बातें भी बोलता है या बोलती है. I respect the media as much. When they talk, they ask pointed questions and you give pointed answers. It's interesting, but it depends on how you actually understand the heart and mind of a celebrity. देखिए, we live in a world today where सबको पता लगता है भाई आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ पहुँचे हो, क्या कर रहे हो. ये झूठ की दुनिया नहीं है, ये सच्चाई की दुनिया है और इंसान को सच पर जीना चाहिए. I personally feel that आप वो सवाल पूछिए, अगर वो सेलिब्रिटी बोलना चाहता है बोलेगा, नहीं बोलना चाहता नहीं बोलेगा. लेकिन all in all, I want to tell you something. I respect podmasters, all of them. Oye, my star, क्या बात है? How are you? अरे पीछे ले, Look here, both of Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. This is very, very special because it's a new medium for us, and we've been, I've been associated with films and OTT content, and this is our first endeavor into audio and audio podcasts and YouTube. So we're very, very excited. It's a new medium, and it feels great. इंडिया में लोग तेजी से पॉडकास्ट कंज्यूम करना पसंद कर रहे हैं. अब हर एक चैनल पर एक पॉडकास्ट आने लगा है, छोटा बड़ा जैसा भी हो, और छोटे बड़े लोग भी उसे देखने लगे हैं, चाहे वो 16 साल के हो, चाहे वो 52 साल के हो, सब लोग उसे देख रहे हैं. तो इस पॉडकास्टिंग कल्चर को आप कैसे देखते हैं और ये मीडियम कहाँ तक जाने वाला है आपके हिसाब से? जी, मेरे हिसाब से जब हम एक टाइम था जब हम रेडियो प्रोग्राम सुनते थे और उसी का वही सोच के हम लोग ने ऑडियो स्टोरीज़ बनाई जो कि टारगेटेड मोस्टली टू Hindi speaking audience, and now we are also doing Tamil, Telugu, but इसमें क्या है कि
या तो हमारे जो पॉडकास्ट है वो उन लोगों के लिए है जो वीडियो इतना देखना नहीं चाहते या इतना डेटा होता नहीं है उनके पास वीडियो देखने के लिए, या तो उन लोगों के लिए जो शौक के दौर पे सुनते हैं और इंग्लिश में सुनते हैं। तो इसकी टारगेट ऑडियंस एक एक्सट्रीम लेवल पे है, या तो पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड डेटा और पीपल हु आर कंज्यूमिंग इट आउट ऑफ चॉइस। सो एज रोज पॉड जो हम लोग ने डिवीज़न शुरू किया है, वी आर targeting both these two high end, low end audiences. Also sir, competitions को लेकर आपको अवार्ड नवाजा गया है, जी ये जानना चाहेंगे ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसा आया आपको पॉडकास्ट? जी, मेरी एक बहुत अच्छी क्रिएटिव टीम है और मुझे एडवाइस किया गया कि हॉरर एक ऐसा जॉनर है जो बहुत चलता है हिंदुस्तान में, और बहुत सारे लोग हैं जो हॉरर को एक ऐसा जॉनर है जो आप साउंड इफ़ेक्ट्स और वॉइस के साथ भी वो माहौल पैदा कर सकते हैं और वो एक्सपीरियंस दे सकते हैं जो ऑलमोस्ट एक विजुअल्स, समटाइम्स इवन बेटर देन विजुअल्स। तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि हमारा पहला पॉडकास्ट जो है वो हॉरर जॉनर में ही हो। थैंक यू सो मच। खरीद लिया चोर बाजार। फुल फ्रंटल। ओके। हाँ सर। Yes sir. डन। Yes. ओके। Sir, bye. हाँ बोलो। So sir, firstly जानना चाहेंगे फर्स्ट टाइम ये अवार्ड्स हो रहे हैं पॉडमास्टर्स अवार्ड्स, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? आप कितने एक्साइटेड और नवाजा भी गया है आपको, सर ये जानना चाहेंगे। देखिए ये मैंने खरीद लिया, जैसे मैंने बताया सबको, ऐसा नहीं है कि मेहनत के काम नहीं है। हाँ चोर बाजार में मिल सकता है, मेरा नाम भी ले लो और 50% डिस्काउंट भी मिल सकता है आपको, बट इसमें कुछ खास बात नहीं है। ये बहुत इजी अवार्ड्स है, अवार्ड सेरेमनी भी इजी है। प्लीज़ कम एनी टाइम एंड एक्सेप्ट योर अवार्ड। ये कौन है बीच में? देखो सर, आप जैसे सेक्स सिंबल्स को नहीं चाहिए यहाँ पे। प्लीज़ आप ये पेज 3 मॉडल्स को निकालो मेरे सामने से, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बीच में। प्लीज़ सर, कैन यू कैरी ऑन? थैंक यू सर। यू आर वेलकम। और कभी शेव करके आना गांडू। सॉरी, एक्सक्यूज माई फ्रेंड्स। बस हो गया, मैं जाऊँ। मैं सिर्फ मेरी खुद का पॉडकास्ट सुना है अभी तक, एंड इट्स वेरी बैड यार, सच बताओ तो बहुत बेकार है। सिर्फ बिल्कुल टाइम पास है, पता नहीं सब्जेक्ट क्या है, पॉइंट क्या है, कुछ विजन भी नहीं है उसमें। कभी कभी गेस्ट नहीं आते, मैं केटरिंग आदमी को बुलाते हैं जो कैंटीन में काम करते हैं। नहीं, जो परिवर्तन क्यों चाहिए लाइफ में? अगर ठीक चलते गाड़ी तो रहना तो ना। डोंट कॉल द मैकेनिक अनलेस कार इज़ ब्रोकन। हाँ, तो सब ठीक है। यार मुझे वो जो बाइडेन को बुलाना है, क्योंकि मुझे वो अमेरिकन यूएस का वीज़ा भी चाहिए। हाँ, तो मैं सोचता कि अगर ये 2 काम एक साथ हो सकता है फिर। और मैंने सुना कि उसके स्पीच में थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है, तो मैं ज़्यादा बात करते, फास्ट बात करते, तो मैं फिलअप भी कर सकते हैं वो डिस्कनेक्ट जो इंटरव्यू में हो जाते हैं कभी कभी। तो बाइडेन सर फर्स्ट, और सेकंड अगर है तो मिस्टर बच्चन को बुला सकते मेरे शो पे। अमिताभ बच्चन, देयर इज़ ओनली वन अमिताभ बच्चन। अमिताभ जी प्लीज़ कम ऑन द शो। पर हमारे पास सिर्फ कन्वेंस है, पैसा नहीं है। बिग बॉस में कभी कभी गाली तो मिलते हैं हर दिन रोड पे, बट हाँ फलक जैड भी कुछ भेजा उस दिन, बेबी का। हाँ, पूजा मैम है कोई। अभिषेक एक बार जब मैं कोई जिमी चू का कुछ कैंपेन किया था, उसने कुछ तारीफ किया 1-2 बार। हाँ, एल्विश को पहचानता नहीं। पुनीत सर यार, पुनीत सर के साथ अभी हमारा जो झगड़ा था वो तो ख़त्म हो गया। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, माई वेरी गुड फ्रेंड, और मेरे ख्याल से हमको कोलैबोरेशन भी करेगा आगे। मैं बुलाते, सिर्फ लोग डरते हैं मुझसे। अभी क्या करूँ, क्योंकि सारी जो इक्विपमेंट है वो स्टूडियो में वो सब ख़त्म करेगा। हाँ। बुलाया, वो आई नहीं, वो आएगी, वो डेट की इशू है। सब लोग बिजी है, मेरे जैसा नहीं है लोग। अभी मैं जाऊँ, भाड़ा सच बताओ, भाड़ा पी लिया? हाँ, ये साइड India wins the World Cup.
नाइट। Thank you so much. नेहा जी इधर। आपके राइट से लाइट इधर है। मेरे पास है लाइट, इधर आ जाओ। हम भी लाइट लाते हैं। चलो हम उधर। मैम लेफ्ट टू राइट। नेहा जी मैम भैया इधर इधर। नेहा जी आपके सामने। नेहा जी आपके सामने। मैम यहाँ। लाइट वाले इधर भी आते। मैम 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 नेहा जी इधर। मैम मैम नेहा जी इधर। नेहा जी मैम 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 नेहा जी इधर। मैम ये साइड। या कैमरा। मैम 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 नेहा जी इधर रुकिए ना एक मिनट। राइट साइड उतार रही रेडी रोल। So firstly, नेहा मैम ये जानना चाहेंगे आज पॉडमास्टर्स अवार्ड्स नाइट है, कितनी एक्साइटेड हो आप, क्योंकि आपने भी एक पॉडकास्ट शुरू किया है। आई थिंक बहुत आई मीन इट्स ग्रेट बिकॉज जितने साल पहले हमने सोचा था कि हम सब पॉडकास्ट शुरू करेंगे, टू नाउ हाउ फार वी ऑल कम, नॉट वी बट एवरीबडी एल्स who's inside the room also how far they've come, and to recognize this as a solo standalone medium of communication, entertainment, of having voices, of being of influence, I think it's absolutely fantastic. और आज मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज एक बहुत बड़ी कैटेगरी में नो फिल्टर नेहा को भी नॉमिनेट किया गया है एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। ऑल्सो मैम पॉडकास्ट की अगर बात करें तो आपका फेवरेट पॉडकास्ट अब तक का कौन सा रहा है आपके खुद के पॉडकास्ट पर? मेरे खुद के पॉडकास्ट को छोड़ के नो आपका खुद का ही कौन मैं सा? अपना खुद का पॉडकास्ट इतनी बार एडिटिंग पे सुनती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगने लगता है। सो आई हैव टू स्टिक विद नो फिल्टर नेहा। मैं और किसी की पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट नहीं करूँगी। No, any one guest आपको जो पसंद आया हो आपके खुद के पॉडकास्ट? I mean, over the years I've had like this 6 seasons, so obviously 68 conversations, which means 68 guests. But you always remember your first one, and my first guest ever was Karan Johar. So I don't think जब mic on हो और बातें शुरू हो तो there's at any point that you're not entertained. So it was really fantastic for me to start. Also want to know आप अपने पॉडकास्ट पर किससे बुलाना चाहते हो जो अब तक का बकेट लिस्ट में है? जो मेरे बकेट लिस्ट पे है और जो अभी तक आए नहीं है, most definitely Shah Rukh Khan. Oh wow, everybody wants to call. Yeah, I'm sure, but I've been willing this for 6 years, it's not happening. Any one reason why? I don't know, I think he's busy and I'd like to believe that. No, why you want to call? Any one reason why I'd like to call him? Oh my Yes. God, of course. I mean, I've been in conversation with him many times before and I think that he's by far the most well-informed, the most intelligent, the smartest actor, person who's such a great kind of flag bearer and representative of the business. And apart from that, I mean, who wouldn't like to talk to Shah Rukh Khan? I'm not going to lie, just want to talk to him. Everybody wants to talk to him. Okay, one last question. नेहा मैम, कितनी बार ऐसा होता है जब मीडिया आप लोगों की सीक्रेट लाइफ कवर करती है या सीक्रेट रिवील करती है, सो वो एक गलत नेगेटिविटी इम्पैक्ट होता है उस चीज़ का। बट अभी पॉडकास्ट एक ऐसी चीज़ हो गई है जहाँ पर हर सेलिब्रिटीज़ की सीक्रेट्स आउट हो रही है, बट वहाँ पर कुछ सेलिब्रिटीज़ हो या कई सारे सेलिब्रिटीज़ उनको प्रॉब्लम नहीं होती। सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? आपने इतना लंबा क्वेश्चन पूछ लिया, मेरे को समझ ही नहीं आया आपको क्वेश्चन क्या है, बट यू आर सेइंग दैट टॉकिंग अबाउट सीक्रेट अबाउट सेलिब्रिटीज। आई थिंक हम सवाल पूछते हैं, आगे जाके जिसको जितना बताना है, कहना है, रिवील करना है, वो उन पे होता है। एंड आई फील अ लार्ज पार्ट ऑफ इट इज़ ऑल्सो हु इज़ होस्टिंग, बिकॉज यू डू रिसर्च, यू मेक देम comfortable, you get into conversation, and I don't think No Filter Neha is a show where you want to go out there and hurt people under any circumstances or make people uncomfortable. We want to entertain our listeners and we also want to make our guests feel comfortable. So both ways we want to protect everyone and have a great show. It's a tough job. Thank you so much. Thank you.